its appreciation for such sentiments which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. तो सीसीएस की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द किया, अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा। सिंधु जल समझौता भी रद्द किया गया। यह बड़ा निर्णय सीसीएस की बैठक में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। 2.5 घंटे तक यह मीटिंग चली और इस मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत का वीजा नहीं मिलेगा और अटारी बॉर्डर को तत्काल बंद करने के भी ऑर्डर हैं। तो बड़ी खबर, सिंधु जल समझौता रद्द किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग सुन रहे थे, जिसमें सीसीएस की जो 2.5 घंटे बैठक चली है, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसमें मौजूद थे। उस बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किया गया। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया, यानी कि पाकिस्तान से अब कोई भी रिश्ता नहीं होगा। अटारी बॉर्डर को तत्काल बंद किया जाए। पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत का वीजा भी नहीं मिलेगा और अब भारत में पाकिस्तान का दूतावास भी बंद किया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है तो कठोर कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं भारत ने। 2.5 घंटे प्रधानमंत्री के साथ में जो मीटिंग हुई है, इन्हीं सब मसलों को लेकर इस मीटिंग चर्चा की गई है कि किस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है, किस तरह से पाकिस्तान को कमजोर करना। 48 घंटे के अंदर
बड़ा फैसला लिया गया है। जो बैठक हुई 2.5 घंटे की, तो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ दें, बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं वो भारत छोड़ दें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई है उसमें ये तमाम सारी बातें बताई गई। जो 2.5 घंटे सीसी की बैठक में चली, उसमें जो निर्णय लिए गए हैं सीसीएस की बैठक में, उसको लेकर जानकारी दी गई है। अटारी बॉर्डर को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। ये संकेत हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास भी बंद किया गया है और 48 घंटे के अंदर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में नहीं होना चाहिए। सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है। यह बड़ा निर्णय लिया गया है भारत सरकार की तरफ से और संकेत है कि भारत चुप रहने वाला नहीं है। जो हरकत की है कायराना आतंकियों ने, और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ है, उनका साथ है, और इसीलिए भारत सरकार चुप रहने वाली नहीं है। करारा जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 2.5 घंटे की मीटिंग में बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं जिसके संकेत भी देखने लगे हैं। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किया गया, पहला निर्णय। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिक भारत को छोड़ दें, कोई भी पाकिस्तानी भारत में नहीं दिखना चाहिए। सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है और अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। ये तमाम निर्णय इस बात का संकेत हैं कि भारत सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। भारत सरकार चुप रहने वाली नहीं है। जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई, पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से की गई है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रही हैं। सीसीएस की बैठक 2.5 घंटे तक चली जिसमें बहुत अहम निर्णय लिए गए। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के नागरिक भारत छोड़ दें। पहला निर्णय, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। आज से अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह तमाम सारी जानकारियां दी गई हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रही कि भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है और जो कायराना हरकत आतंकियों ने की है उसका बदला लेने की तैयारी में है भारत सरकार। तो की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। सीसीएस की 2.5 घंटे की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया भारत सरकार की तरफ से। 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त भारत में मौजूद हैं वो 48 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत से चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की यह बैठक हुई है जिसमें कठोर कार्रवाई के संकेत भी दे दिए हैं भारत सरकार ने और बहुत बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। तो अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई जिस तरह की यह कायराना हरकत की गई है आतंकियों के द्वारा, और जो भारत में पाकिस्तान का दूतावास है उसे भी बंद किया गया है। तो यह संकेत है कि भारत सरकार चुप रहने वाली नहीं है और करारा जवाब देना जानता है भारत, और करारा जवाब दिया भी जाएगा आतंकियों को। इस बात का संकेत दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। जो 2.5 घंटे की मीटिंग चली है उसमें कठोर निर्णय लिए गए हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हैं दिल्ली से। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हैं। जिस तरह से देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा था, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, कायराना हरकत की आतंकियों ने 28 निर्दोष लोगों की जान ले ली, उसका बदला चाहता है भारत का हर एक नागरिक, और इस बात का संकेत भी भारत सरकार ने दे दिया है। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर लिया गया है।
तो सिंधु जल समझौता रोक दिया गया। अटारी बॉर्डर से आवाजाही पूरी तरह से बंद। पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से 48 घंटे में देश छोड़े। भारत पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद और भारत में भी पाकिस्तानी दूतावास बंद, यह निर्णय लिया गया है। और 7 राजनायिक, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले फैसले तक भारतीय वीजा नहीं दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की दिल्ली से। तो पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट यानी कि सीसीएस की मीटिंग हुई। 2.5 घंटे की मीटिंग चली जिसमें 5 बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। पहला बड़ा फैसला, सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। यह बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से। दूसरा बड़ा फैसला, अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद कर दी गई है तत्काल प्रभाव से। पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से बंद, 48 घंटे में देश छोड़े। और पाकिस्तान में होगा, वहीं भारत में भी पाकिस्तान का दूतावास बंद होगा, यानी कि अब पाकिस्तान से कोई भी समझौता, कोई भी रिश्ता भारत सरकार नहीं रखेगी। 7 दिन में देश छोड़े पाकिस्तानी राजनायिक, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले फैसले तक भारतीय वीजा नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक, उसमें ये बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। जिस तरह का माहौल था पूरे देश भर में, हर कोई इस आतंकी हमले की निंदा कर रहा था, गुस्सा था लोगों में। सड़कों पर उतरकर लोग बदले की मांग कर रहे थे और इस बात के संकेत भारत सरकार ने दे दिए हैं कि भारत सरकार चुप रहने वाली नहीं है। करारा जवाब देना जानती है भारत सरकार और उसी के संकेत आज की 2.5 घंटे जो मीटिंग हुई उसी से भारत सरकार ने दे दिए हैं। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी राजनायिक भारत छोड़ दें। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो तमाम सारी अहम बातें बताई गई जो फैसला लिया गया है सीसीएस की बैठक में। सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है, अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद कर दी गई है और पाकिस्तान का वीजा तत्काल प्रभाव से बंद, 48 घंटे में देश छोड़ें। वहीं पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद होगा और भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद होगा। 7 दिन में देश छोड़े पाकिस्तानी राजनायिक और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले फैसले तक भारतीय वीजा नहीं दिया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। तो पहलगाम हमले के बाद जिस तरह का आक्रोश था पूरे देश की जनता में, देश के नागरिक में, हर कोई बदला मांग रहा है और उसके संकेत भारत सरकार ने दे दिए हैं। 2.5 घंटे में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह जानकारी दी गई कि 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान की कहीं ना कहीं साजिश है इस आतंकी हमले में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन भी है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आतंकियों की मदद की गई है, तो पाकिस्तान को जवाब भी दिया जाएगा। That this attack came in the wake of the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors
from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, सीसीएस की मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से और जो बड़े फैसले लिए गए उसके बारे में जानकारी दी गई है। 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ दे और अगले आदेश तक किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। और केंद्र ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सीसीएस की बैठक में ये 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। अटारी बॉर्डर को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं और पाकिस्तानियों को भी भारत छोड़ने के आदेश। भारत में पाकिस्तान का दूतावास बंद होगा। सिंधु जल समझौता जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सिंधु जल समझौता जो था उसे रद्द कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। सिंधु जल समझौते के बारे में आपको बता दें कि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था जिसमें नदियों का बंटवारा किया गया था। इसमें कुल 6 प्रमुख नदियां थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकतर जल मिलने का अधिकार था इस समझौते के जरिए, जो कि अब रद्द कर दिया गया है। तो यानी कि पानी के लिए भी जाएगा पाकिस्तान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में यह बैठक होगी। सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है और जो आतंकी हमला हुआ था उसकी निंदा सभी दलों ने की थी और सभी दलों की तरफ से कहा भी गया था भारत सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। सरकार जो निर्णय लेगी, पूरा विपक्ष, देश का हर एक नागरिक, देश का हर एक नेता सरकार के साथ में खड़ा है और इसीलिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यानी कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा झटका पाकिस्तान को दे सकता है भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। तो सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में यह बैठक होगी। आज सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और कल सभी दलों के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे। यानी कि आज जो फैसला लिया गया होगा कि किस तरह से जवाबी कार्रवाई करनी है और भारत सरकार किस तरह से जवाबी कार्रवाई करने जा रही है, जो बड़ा निर्णय आज की बैठक में लिया गया है, इसको लेकर सभी दलों के साथ में कल बातचीत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और उसके बाद माना जा रहा है कि कुछ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से।